Yeah, well, I have begun it. Okay, so yeah, let's get started. Over to you, Yes. Pritesh. Uh, Please share your screen. Definitely. Hello, guys. Mohan will take your automation, Java, Selenium, and everything related to the automation. He will cover in coming 2.5 months. Okay, and he's having 8 year plus experience. Okay, he worked with multiple companies. Okay, and definitely we'll learn so many things from Mohan. Okay, so if you have any queries, question, you can ask anytime, and he will give you some tasks whenever we'll start our coding related part. Okay, there is no need to fear if you don't have any means background from the coding related things, because we are going to learn from very basic. Okay. Yes, Mohan, go ahead. Yeah, thanks, Pritesh. Yeah. So, hello everyone. So, today we are going to start with the basic thing that we require. So, we are taking Java as our programming language and not directly starting with Java. We will start with some basic things that we need beforehand when we start on Java. Okay, some tools, some settings that we need to make in our system. So we will start with that. So Pritesh, are you going to continue with us in this session, or you may drop if you require? Yeah. I'm just checking. All right. Okay, I'll talk. Yeah. Sure, no problem. Yeah. So we have Mahesh, Poonam, Shubham, Pratik, Rajat, and Pritesh. Okay, Sweetie as well. Okay, do you guys have any questions for me, or you want to ask anything to me before we start? No questions from my side. No questions from Pratik's side. So anyone from you guys belonging to the Java or the IT industry, or have current IT experience, or all of you are just new? New. 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 Okay, no worries. Hey, hi Vinay. All right. So Vinay is the new entrant. All of you are able to see my screen, right? Yes. Hmm. Please speak a little louder, okay? I'm unable to hear, and I expect everyone to speak, okay? Let's have an interactive session. All right. So you guys are aware that we are going to start with Java, right? Hello. Hey, you can turn on your mics. No need to means worry about that. Yes, sir. You're audible. Yeah, I'm audible, right? Yes, sir. Yeah. So yeah, we will start with Java, not directly with Java, but some basic settings that we require to have Java in our systems. Okay. So does anyone know how to check if we have Java in our system or not? No. No. All right. So we have Java in our system or not? We can check in a very simple manner. So what you need to do, just go in your search, type CMD, that is command prompt. Okay. This is a very basic utility which you will require. So always remember of it. Command prompt. Okay. Somebody is joining. Let me admit. Hi Sheetal. Hey Vinay, are you able to hear to us? Well, so now command prompt. So and type Java here. Okay. Now once you type Java and press enter, you get some response. See, since now type something different. Now I have typed Maven. Okay. This is also some kind of programming mechanism. When you typed Maven, what did it say?
It say Maven is not registered as an internal or external command, operation program or batch file. Not recognized, okay? Not recognized, it means it is not present on this system. You guys get my point? And when you type Java, it says it gives you some options. So when it gives you a response, okay, other than not recognized, it means the particular thing is already present on the system. I have done it, okay? I will explain you how to do it on your system. Before that, first you guys tell me if you are comfortable in English or should I continue with Hindi? Because everybody should be comfortable when I speak in English. Is there anyone who is not comfortable? No problem. We can continue in Hindi as well. So both are good. All of you are good? Yeah, I'm comfortable with both. All right. Okay. So if anybody gets any doubt or anything, just stop me there, raise your hand and just do let me know. Okay. I'm expecting the same from everybody. All right. So this is how you can check if the Java is installed on your machine or not. Okay. Somebody is joining in. So when you type something like this, it says it is not recognized. Not recognized, it means this is not present on your system. To start with Java, you need to have Java installed on your system. So what you require, first you require JDK. Let me specifically requirements to install or run Java programs on my machine. First I require JDK. JDK is nothing but Java Development Kit. And second I require JRE. Don't worry, okay? Do not fear to these terms. These are very simple things. I will explain. Java Runtime Environment. You don't need to learn these, okay? They are just for simple information. These questions are asked, okay? So you require JDK and JRE. You need to download them and install them. So like you download any software in your system, you just have to do the same thing. You just need to download them from internet and install on your system. Okay. Now how do we do that? So come to Google, type JDK for Windows. Now my system is Windows. Okay, I can type Windows 10 as well, and my system is 64-bit. So I will type it this way and go it this way. How do you understand if your system is 10-bit or 64-bit? So you can directly go in system properties. Let me help you with that as well. Go to Windows button, check for your PC. If not, then search it this way, PC, and you can go to properties. Navigate to properties. Now see, system type. This says 64-bit operating system, right? So that's how I understand my system is 64-bit. Got it? Clear with this point? And it says Windows 10. So this gives pretty much information about my system. Can anyone confirm that if that was okay? Yeah, yes, sir. All right. So now let's go to the first part, that is JDK installation. So now the first one, oracle.com. So JDK is the licensed product of Oracle. So you always need to download it from there, not from anywhere else. Okay. So come to this site, Java downloads. Navigate a bit. See, latest are Java 18 and Java 17. You can download them as well, or you can download JDK 8 as well. Okay, version, that is called version. Are you aware with the versions? No. Yes. In general, not specific to programming. This is a very general thing. Have you ever heard of versions? Version first, second version, third version? Yeah. Like Android versions. Exactly, Android 22. versions. Then they will be updated, right? So what happens
Initially, Yeah. when you make the first stable build, and let's say we call it as first version or version 1.0, okay? So after some days you will improve it, right? You will add some things to it. You will make it good for user experience, right? So the second version gets available, and then your system says there is a system update available, please download and upgrade your version, right? Even this is now your Google Chrome. What is the version of it? Come to these three dots, come to settings, okay, come to about Chrome. See, this is the 100th version of this particular Chrome. It means 100 times this particular software got revised, okay? They made some changes, they made some improvements for betterment, for good user experience. So each time they make some change, they change the version as well, okay? See, this is called as bit, 32-bit, okay? So it means 16 or 17 times this software got updated, and it will continue on doing so. If next year if you check it, so you might be able to see Java 22 or Java 23, something like that. So don't feel anything new in that. That's just a version. And if anybody asks you which version should you use, what can you tell? You can tell that most of the times, or our preference should be to use the latest version. Why? Because latest version is the most upgraded and highly stable one. It is something which does not contain problems or defects or bugs that are present in the older versions. Do you get my point? Yes, sir. Yeah. Yes. Are you guys aware with the terms bugs, defect? Yeah. Yeah, Yeah. they mean nothing but the problems or some issues, okay? Some problems or issues. So latest version will contain less number of bugs than the older ones. That is why we revise them. Now scroll down. See, Java SE Development Kit 18 downloads. Okay. Now if you come down, uh, all right. So you see for Linux, it is also operating system. Mac OS, that is for Apple, and Windows, right? So if you come to here, you will see this. Compressed means .zip. You can download this as well, but preferably always install installer, that is .exe. Do you understand the meaning of .exe? Yes, sir. Any application software ending with .exe. See, every file type in the Windows or in any machine have some format, like JPG, JPEG, right? Word files, Excel files, right? Yeah, right. For Android, it will end with APK. Exactly. .apk files are there. APK So for that is Android. called as extension. What is that called as? Extension. Extension is just for understanding that which file type it is. If it is PNG file, it means it is related to some image, right? If it is docx, it means it is related to Word files. Pretty simple. Come to your programs, no need to go anywhere. Come to your own machine, okay? If I come to pictures itself, okay, or say in document anywhere. So now see, this is particular file. Let me right click and go to properties and see its name. See, type of file is .docx, right? It means this file can only be opened in Microsoft Word document, not in any other program. Microsoft Word document is also a program. So .exe stands for executables. It means it's an application file. When you run it, it will start some program. It means that, okay? Executable files or application files to run a new program or say a software. So whenever you try to download some program, mostly they will be .exe files. It does not mean that all of them will be exe, okay? There are some other file formats as well. So simply download this from here. So it starts. Okay.
So I will say download JDK and JRE of version 8. That is the stable build. I will provide you the links as well. Okay, so JDK 8 for Windows 64-bit. If your system is 32-bit, type it 32-bit. Okay, otherwise there will be a problem. Go to PC, under properties you can check your system type. It is 32 or 64. Do not panic if it is different for different individuals. That has nothing much to do with us. That will not trouble us. See, Java Development Kit 8U202. So this is for version 8. Now scroll down a bit. So these are nothing but different operating systems. Solaris is different one. Mac OS is there. Scroll down a bit. Windows 64, right? And this is the one. So this is the one you need to download. Let me copy link address for you. And then just under that you can see runtime environment. Do you see runtime environment? That is nothing but JRE. So install this as well. Windows 64. Copy link address. Alright. These are nothing but the libraries. What do you mean by libraries? Can anyone explain me a general meaning of library? Anyone? Library is where the predefined function is stored. Like Yeah, that is very much a specific definition to programming. But library, thanks to Sheetal for that. Library, it means something where we can get some information, right? About something. If it's a college library, you can go and get some books. You can read through them and you can understand the context of some information, or you can get some idea. So here, if Java has to check what it means, what that means, whatever things that are present in the Java. Like suppose I tell you a simple example. There is a loop in Java, for loop, while loop, okay? But what is the meaning of loop? If it has to understand that, it will require a library. And where these libraries are present for you, they are present in development kit. They are present in development kit, not runtime environment. So what is present in runtime environment? When you write some program and when you run that program, okay, so how to run that program? If that program contains everything that is right, if nothing, like, sorry, if you haven't made any means there are some rules when you write a Java program, that every sentence should end with semicolon, okay, it should have a particular syntax or a particular, there are some standards or there are some rules. You need to follow those rules. If your written program is following those rules or not, Java will check that before running that program. So it requires another library to make those checks, and that library is called as JRE, that is runtime environment. Any questions on this part? Just a moment, guys. Yeah, sorry. So do you get the meaning of JDK and JRE? JRE. Yes, I will explain. JRE, it's a runtime environment. So when you try to run the program of Java, Java will check if it is following all the rules or all the syntaxes properly, okay, before executing. So it needs a library to compare with, right? So that library is nothing but the JRE. Suppose you got an answer sheet from a student, okay, that he has written some answer of some questions.
How do you see if that answer is correct or not? You will require a textbook in which the answer of the question can be found, or you will require the answer with you so that you can compare with it, right? आपको लगेगा ना कि पहला आंसर करेक्ट है, इसके लिए दूसरा आंसर लगेगा ना, जो करेक्ट आंसर आपके पास होना चाहिए ना, उसको कंपेयर करके तो आप बोलोगे कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं? सो वो जो लाइब्रेरी जिससे जावा खुद कंपेयर करता है कि सारे रूल्स आपने प्रॉपरली फॉलो किए हैं या नहीं है, उसको बोला जाता है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। Got it, sir. हाँ, ये दोनों चीज़ें आपको दिखेगी नहीं, ये बैकग्राउंड में होती रहेगी, आपको दिखेगी नहीं। सो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे विंडोज 64 के लिए JRE एंड JDK, ठीक है? और दोनों डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर, मतलब सिंपली आपको रन करना है। कैसे? जस्ट अ मोमेंट। मैंने कल कर लिया था, या फिर भी चेक करता हूँ मेरे सिस्टम में है क्या, अगर होगा तो मैं ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं होता है शायद। ऑलराइट, नो वरीज। जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम को क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो, राइट? कैसे करते हो? डबल क्लिक करके। ये जैसे ये था, आप क्या करोगे, इसको डबल क्लिक करोगे, ओके, सिंपली, और यस करोगे। ये JDK 18 है, मुझे इसको इंस्टॉल नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। सो ऐसा प्रोग्राम शुरू होगा, आपको बस नेक्स्ट 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 करके इसको क्लोज करना है, ओके? फाइनल विंडो में क्या बोलेगा, योर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, और आपको फिर क्लोज का बटन आएगा, कैंसिल और नेक्स्ट का बटन नहीं आएगा। अगर उस विंडो तक आप पहुंचते हो, इसका मतलब है कि आपने JDK और JRE को दोनों को प्रॉपरली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है। गेट माई पॉइंट? Yes, sir. And there are tutorials on YouTube also. Yeah, there are tutorials on YouTube as well. If you get any troubles, you can let me know as well. So एक सीधा exe फाइल ओपन होगा, आपको उसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करना है ना? आपको वो एक चीज़ पूछेगा कि मतलब आपको डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बनाना है क्या, आपको जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है उसका लोकेशन चेंज करना है क्या? तो मोस्टली आपको वैसा कुछ करना ही नहीं है, जो भी वो दे रहा है ना, डायरेक्टली बस उसको नेक्स्ट 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 कर दे जाओ, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ज़रूरत वैसे नहीं है, ठीक है? मैं इस चीज़ को अभी अबॉर्ट कर रहा हूँ, आई एम अबॉर्टिंग दिस ऑपरेशन। नाउ आपका JDK और JRE जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, आप क्या करोगे, आप पहले चेक करोगे। कैसे? CMD पे आके पहले तो आप जावा हिट करो, जावा टाइप करके हिट करो। अगर आपको ऐसे ऑप्शंस आते हैं, इसका मतलब है कि आपका जावा इंस्टॉल्ड है। आप और कर सकते जावा स्पेस स्पेस डैश वर्जन, ऐसा अगर पूछोगे तो जावा अपना वर्जन बताएगा। क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, जावा वर्जन इज़ 1.8.0202, और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट देखो वो क्या बोल रहा है, दोनों सेम ही है। जावा का वर्जन मतलब JDK और JRE का वर्जन दोनों क्या है, सेम है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों के वर्जन सेम होने चाहिए, अलग अलग रहे तो भी चलता है, ठीक है? लेकिन मोस्टली ट्राई करोगे सेम ही रहे JDK और JRE। वो आप कब मेक श्योर कर पाओगे, व्हेन यू डाउनलोड एट दैट टाइम। अगर आप दोनों ही सेम वर्जन के डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो तो वो दोनों सेम हो जाएंगे। अब इसको चेक करने का और दूसरा तरीका और बताता हूँ, मल्टीपल वेज है। एक तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप कमांड हिट करके देखो, कमांड प्रॉम्प्ट में आपको हमेशा कमांड ही हिट करके देखना पड़ेगा। या तो आपके पास क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है, आप लोगों को पता है कंट्रोल पैनल? Yes, sir. तो यहाँ पे लार्ज आइकन्स पे आओ, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये यहाँ पे होते हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में, ठीक है? व्यू बाय में क्या करना है आपको, लार्ज आइकन्स करो और प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में क्लिक करो। आप लोग एट द सेम टाइम मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ें मत करो, हाँ, क्योंकि फिर आप पीछे रह जाओगे। वैसे भी ये सेशन रिकॉर्डेड है तो ये वैसे भी मिल जाएगा, सो डू नॉट रिपीट द सेम थिंग्स, ओके? जस्ट फोकस हियर। यहाँ पे आप देख रहे हो जावा 8 अपडेट 2.2 आया है और जावा SE डेवलपमेंट किट भी आया है ना? अगर ये आपको दिखते हैं, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में ये दोनों चीज़ें अभी क्या हो गई है, इंस्टॉल हो चुकी है। ओरेकल इनकी कंपनी है और आप इन दोनों का वर्जन देख सकते हो, 8 पॉइंट समथिंग है, राइट? इट मीन्स जावा और JRE दोनों आपके मशीन में इंस्टॉल्ड है, ओके?
यहाँ तक क्लियर है गाइस आपको? Yes, sir. यहाँ ये तो वैसे भी सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसा मत करना कि बहुत सारे जेडीकेस और बहुत सारे जेआरई आपने क्या कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, है ना। उससे क्या होगा, उससे सिस्टम को खुद को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मुझे यूज़ कौन सा करना है। आपने जेडीके 8 भी कर लिया, जेडीके 9 भी कर लिया, जेडीके 10 भी कर लिया, ऐसा मत करना। क्या करना, एट अ टाइम कोई भी एक जेडीके या फिर कोई भी एक जेआरई रखना, दोनों एक ही कॉम्बिनेशन रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेडीके के बहुत सारे वर्जन्स हैं और जेआरई के दो बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है। मोस्टली मुझे लगता है कि प्रोग्राम खुद ही बोलेगा, अगर आप जेडीके 10 डाउनलोड करना चाहोगे, इंस्टॉल करना चाहोगे, तो मुझे लगता है कि वो जेडीके 8 को रिप्लेस कर देगा और डायरेक्ट 10 को रखेगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो आपको मेक श्योर करो कि वो जेडीके 8 आप खुद जाके मैन्युअली कंट्रोल पैनल से उसको रिमूव करो। सिस्टम को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो नाउ दिस इज फर्स्ट पार्ट। जावा सीखने के लिए आपको सबसे पहले जेडीके और जेआरई लगेगा, ओके। दूसरी बात, आपको क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। हाँ, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वैसे ये वेरिएबल्स जो नाम का टर्म है, ये आप आगे भी सुनोगे हमारे प्रोग्राम्स में। वैसे हमने अभी तक भी सुना होगा, वेरिएबल्स मतलब जो वेरी होते हैं, चेंज होते हैं, उनको कहा जाता है वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने मानो x ले लिया, जिसका वैल्यूज मैंने रख दिया 8, बाद में मैं इसी x का वैल्यू 10 रख सकता हूँ। सो कुछ समय बाद इसी x का वैल्यू मैं 20 भी रख सकता हूँ, 70 भी रख सकता हूँ, जो मुझे चाहिए जो वैसा रख सकता हूँ, करेक्ट। तो एक ऐसी कोई भी चीज़ जो वेरी हो सकती है या फिर होती है, उसे कहा जाता है वेरिएबल। और वेरिएबल का अपोजिट वर्ड क्या है, कोई बता पाएगा, अपोजिट ऑफ वेरिएबल? सिंपल, हाँ बोलो। Constant, constant, sir. एग्जैक्टली, कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट वेरिएबल का एंटोनी में अपोजिट है। ऑल राइट, गुड, थैंक्स फॉर योर आंसर। ओके, नाउ आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट सर्च हियर में आओ, यहाँ पे टाइप करो, इतना भी टाइप किया है ना आपने, ENV है, तो यहाँ पे देखो बोला है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। आप इसको क्लिक करो या फिर ओपन पे क्लिक करो। इस पैनल में देखो कहाँ पे आ गए आप, सिस्टम प्रॉपर्टीज में आ गए हो। कहाँ पे आए हो, सिस्टम प्रॉपर्टीज में, हार्डवेयर टैब में। मल्टीपल टैब्स है, कंप्यूटर नेम है, हार्डवेयर है, एडवांस्ड है, सिस्टम प्रोटेक्शन है और रिमोट है, ठीक है। आप कहाँ पे आए हो, एडवांस्ड में। यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रही है, देखो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिख रही है ये चीज़ आपको। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा दो, इसे कहा जाता है यूजर लेवल, इसे कहा जाता है सिस्टम लेवल। यूजर और सिस्टम लेवल में क्या डिफरेंस है, यूजर एंड? सर ये ईवीएम इसमें जेडीके में है। कम अगेन प्लीज, फिर से रिपीट कीजिए। वेरिएबल है जो आपने ये ओपन जेडीके में है। नहीं नहीं, ये जेडीके का पार्ट नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर का पार्ट है, इसका जेडीके से कुछ लेना देना नहीं है, ओके। बिल्ट इन है कंप्यूटर में, सबके लैपटॉप में। हाँ, सबके लैपटॉप में। अगर आप जेडीके और जेआरई को इंस्टॉल नहीं भी करते हो और आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सर्च करते हो, फिर भी आपको ये मिल जाएंगे, ओके। ओके सर। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये इसका जेडीके और जेआरई से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यूजर वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिस्टम वेरिएबल्स क्या होते हैं। कभी आपने देखा है क्या, एक ही सिस्टम पे वन सिस्टम हैज़ मेनी प्रोफाइल्स, है ना। जैसे कि आप हो, आपके घर में एक कंप्यूटर है और 4 यूज़र है, आप है, आपके भाई है और आपके पेरेंट्स है। तो आप क्या करते हो, मतलब सेफ साइड के लिए क्या करते हो, 4 अलग अलग प्रोफाइल्स बनाते हो, है ना। 4 अलग अलग प्रोफाइल्स के 4 अलग अलग क्या रहेंगे, यूज़र नेम रहेंगे, पासवर्ड रहेंगे। तो जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करोगे, सबसे पहले वो चारों अकाउंट आपको प्रोवाइड करेगा, बोलेगा इसमें से आपको कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट करो।
आप उसमें सिलेक्ट करोगे, आपका जो है पासवर्ड डालोगे, आप अपने अकाउंट में जाओगे, आपका जो जो भी वर्क है, आपकी जितनी भी फाइल्स है वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। ये फाइल्स जिस पे आप काम कर रहे हो वो बाकी तीनों को नहीं मिलेगी, ठीक है। और उन तीनों की फाइल्स आपको भी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी एक दूसरे के काम से छेड़खानी ना करे। ओके, सो एक सिस्टम में कितने यूज़र हो गए? 4 यूज़र हो गए। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? यस सर। हाँ। सो जैसे कि ये सेटिंग मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप कंट्रोल पैनल में आना, ठीक है। कंट्रोल पैनल में फिर से ये कर लो लार्ज। यहाँ पे यूज़र अकाउंट्स दिख रहे हैं आपको, इस पे क्लिक करो। अभी इस सिस्टम में एक ही अकाउंट है, अगर आप चाहो तो आप नया अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। देखो मैनेज अनदर अकाउंट है, ऐड अ न्यू यूज़र इन पीसी सेटिंग्स, मैं नया अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये अकाउंट मेरा है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का अकाउंट है, और मेरे अकाउंट से बाकी के लोग छेड़खानी ना करें, तो उनके लिए मैं गेस्ट नाम का अलग अकाउंट बना सकता हूँ, और उस अकाउंट को पासवर्ड देना ही नहीं देना मेरे ऊपर है। मैंने नहीं भी दिया तो चलेगा, लेकिन इस अकाउंट को मैं पासवर्ड दूंगा ताकि बिना पासवर्ड के कोई इसको ओपन ना कर पाए। ओके, सो ये होते हैं अलग अलग टाइप के अकाउंट्स एक ही कंप्यूटर पे। अब देखो वो एग्जाम्पल याद करो कि 4 अकाउंट है जो हमने पहले ये किया था, इसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे। अब मैंने जावा जेडीके और जेआरई मेरे इस अकाउंट में, पहले वाले अकाउंट में ये कर दिया, इंस्टॉल कर दिया है, तो बाकी 3 अकाउंट्स में मुझे वो विजिबल होगा क्या? कोई बता पाएगा क्या वो बाकी 3 अकाउंट पे मुझे विजिबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमने इंस्टॉल किया है वो कहाँ पे गया है? प्रोग्राम्स में, ठीक है। कंट्रोल पैनल में आओ फिर से, जस्ट अ मोमेंट। वो सबके लिए होगा, क्योंकि ये जो कंट्रोल पैनल है ये सबके लिए अवेलेबल होता है, और ये प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, ये कॉमन प्रोग्राम्स एंड फीचर्स है, ठीक है। इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, समझे? प्रोग्राम्स ऐसा नहीं, मतलब ये कंप्यूटर पे इंस्टॉल हुए हैं, यूज़र के प्रोफाइल पे इंस्टॉल हुए हैं क्या? नहीं। ओके, सो ये जेडीके और जेआरई सबको अवेलेबल होगा, ठीक है। आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया? क्यों होगा? तो क्योंकि वो सिस्टम पे है ना। सिस्टम मतलब सबसे बॉटम की चीज़ है, बॉटम की चीज़ पे जो कुछ भी होगा सबको वैसे भी मिलेगा। अगर मैंने यूज़र पे उनको डाउनलोड और इंस्टॉल किया होता तो वो उस यूज़र के लिए होता, बाकी सबके लिए नहीं होता। वैसे भी आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं, करेक्ट? जैसे कि यहाँ पे देखो ये ड्राइव्स है, EFDC, ये C वाला कॉमन होता है क्योंकि इसमें आपके विंडोज़ के सॉफ्टवेयर, विंडोज़ के प्रोग्राम, सारी चीज़ें इसमें आपकी इंस्टॉल होती है, ठीक है। सो एनवायरनमेंट वेरिएबल की तरफ हम आ रहे थे, तो क्या होता है ना, आपके सिस्टम को पता होना चाहिए कि आपका जेडीके और जेआरई कहाँ पे डाउनलोडेड है और इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि आपने इंस्टॉल किया है, लेकिन इसको रन करने वाला, चेक करने वाला, प्रोग्राम लिखने वाला सिस्टम है ना, ये सारी चीज़ें कौन समझेगा? आपका सिस्टम, मतलब आपका कंप्यूटर समझेगा। तो कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि मुझे किससे कंपेयर करना है, मेरा रेफरेंस पाथ कहाँ पे है, जेडीके का मेरा रेफरेंस पाथ कहाँ पे है, जेआरई का मेरा रेफरेंस पाथ कहाँ पे है। इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? उसका पाथ सेट करते हैं। पाथ सेट करना मतलब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आए थे, अगर आपने इस प्रोफाइल के यूज़र के लिए सेट किया तो बाकी 4 जो यूज़र थे उनमें से तीनों को वो अवेलेबल होंगे क्या? नो सर। नहीं होंगे, क्योंकि वो यूज़र स्पेसिफिक हो गए। अगर बाकी यूज़र अभी उनको यूज़ करना चाहते तो उनको भी पाथ सेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने सिस्टम पे कर दिया तो वो अवेलेबल होगा क्या बाकी तीनों के लिए? यस सर, क्योंकि होगा। सिस्टम पे रहेगा वो। यस, सिस्टम पे जो भी चीज़ रहेंगी वो सबको अवेलेबल होगी क्योंकि सिस्टम सबके लिए कॉमन है, ठीक है। सो बेटर क्या होता है, अगर हम इसे कहा जाता है ग्लोबल, इसे कहा जाता है लोकल।
लोकल मतलब जो लिमिटेड है, और ग्लोबल मतलब जो अवेलेबल टू एवरीबडी है, ठीक है। सो जो यूज़र लेवल वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमारी लोकल सेटिंग्स होती है, और सिस्टम लेवल की क्या होती है, हमारी ग्लोबल सेटिंग्स। प्रेफरेबल कौन सा इन दोनों में से, ग्लोबल सेटिंग्स, ठीक है। ग्लोबल से सेटिंग्स प्रेफरेबल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो चीज़ें। एक ये पाथ वाला चीज़ याद रखना, ठीक है। ये ऑलरेडी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, वो बाय डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, सिस्टम वेरिएबल्स को अल्टर करने के लिए, ऐड और मॉडिफाई करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप एडमिन नहीं हो तो ये ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ और सिस्टम वेरिएबल्स को आप छू नहीं पाओगे, ठीक है। अब आपके पर्सनल सिस्टम है तो आप वहाँ पे एडमिन हो, लेकिन जब ये बात आप याद रखो, ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगी आपको, जब आप आईटी में जाओगे और वो आपको सिस्टम देंगे तो वहाँ पे आप एडमिन नहीं रहोगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके मतलब आप कुछ भी इंस्टॉल करें, कुछ भी अनइंस्टॉल करें, है ना। तो वो आपको एडमिन राइट्स नहीं देंगे। उस केस में आप क्या कर सकते हो, लोकल लेवल पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एडमिन राइट्स के लिए रिक्वेस्ट अरेज कर सकते हो। ये काम बहुत स्टार्टिंग में करना होता है और हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। वो अगर बोले कि आपको एडमिन राइट्स क्यों चाहिए, तो आप बोलो कि ऑटोमेशन के लिए जो भी प्री रिक्विजिट्स हमें सेट करने हैं वो हमें विदाउट एडमिन राइट्स नहीं हो पाएंगे। ऐसा उन्हें स्पेसिफिकली आप उनको रीजंस दो, आप उनको वैलिड और लेजिटिमेट रीजंस दोगे तो वो आपकी डेफिनेटली सारी चीज़ें मानेंगे। अगर वो नहीं मानता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर आपके जो भी मैनेजर है उनसे आप बोल सकते हो कि सर मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पे ब्लॉक हूँ, प्लीज़ आप आईटी टीम से कंसल्ट करके बोलो कि वो मेरे मशीन पे ये सारी चीज़ें मुझे ला के दे, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको दो चीज़ें सेट करनी है। एक, जो जेडीके आपने डाउनलोड किया उसके लिए आपको जावा होम सेट करना है, जावा अंडरस्कोर होम करके, और दूसरा आपको क्या करना है, जेआरई होम सेट करना है, ठीक है। मेरे सिस्टम में मैंने कल करके रखे, जस्ट अ मोमेंट, कहाँ पे गया वो, ये है। तो क्या करना है आपको, न्यू क्लिक करना, वेरिएबल का नाम देना जावा अंडरस्कोर होम, ठीक है। और यहाँ पे आना फाइल्स में, आपके सी ड्राइव में आपने जो भी जेडीके जेआरई इंस्टॉल किए, एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, वो मोस्टली आपको प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे मिलेंगे या फिर यहाँ पे मिलेंगे। मेरे केस में यहाँ पे है। यहाँ पे आओगे तो आपको जावा नाम का फोल्डर मिलेगा, है ना। इस जावा नाम के फोल्डर को एंटर करो, देखो यहाँ पे आपको जेडीके भी मिल रहा है और जेआरई भी मिल रहा है, ठीक है। 950 ये ठीक है, टाइम कुछ सिस्टम का अलग प्रॉब्लम होगा। तो आप जेडीके, आप जेआरई होम के लिए आपको जेडीके लगेगा, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ और ये पाथ कॉपी करो, ठीक है। पाथ कॉपी कैसे करना, ये होता है पाथ, यहाँ पे माउस क्लिक करो और सिंपली कंट्रोल सी कर लो, और कुछ नहीं, आपको ये वेरिएबल वैल्यू में उसको पेस्ट करना है, दैट्स इट। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ब्राउज फाइल में जाओ, यहाँ पे जेडीके में जाओ और ओपन कर दो, हो गया, बात सेम ही है। कॉपी पेस्ट करो या फिर ब्राउज से जाओ और ओके करो, ठीक है। ओके करोगे तो आपको, मैं अभी कैंसिल करता हूँ, ऑलरेडी है, जावा होम मिलेगा। सेम टाइप से आपको जेआरई होम करना है। जेआर क्या करना, न्यू में जाना, या आपको लिखना है जेआरई अंडरस्कोर होम, और यहाँ पे आ जाओ, नेविगेट करो। नेविगेट कैसे है, स्क्रॉल डाउन करो, नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा सी में है ऑलरेडी, प्रोग्राम्स फाइल्स में अंडर जावा, ये जेआरई हो गया, बस इसको ओपन करो। जस्ट अ मोमेंट, कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा, इतना ही सिलेक्ट करो, शायद ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से कर सकते हो। एक स्टेप पीछे जाओ, यहाँ से भी आप एक्सप्लोर कर सकते, पीछे और कंट्रोल कर सकते हो। इस पाथ को कॉपी करो और वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो, सिंपल सी चीज़ ये है, बस हो गया। आपने ब्राउज फाइल किया था इसलिए आपको ब्राउज डायरेक्टरी करना पड़ेगा। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि फाइल और डायरेक्टरी में क्या फ़र्क है?
अगर नहीं पता तो आप नहीं बोलो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नो वरीज। किसी को पता है फाइल और डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है, क्या क्या है उनमें? नहीं। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो ये JDK और ये JRE, ओके। अभी ये आ गया। फाइल मतलब, देखो सिंपल कर देता हूँ, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, ठीक है। और फोल्डर के अंदर जो भी फाइल प्रेजेंट होगी उसे कहा जाता है फाइल। फिर वो आपकी .png हो, .exe हो, एनीथिंग इज नथिंग बट अ फाइल। बस वो फोल्डर नहीं होना चाहिए। तो मैंने ब्राउज फाइल करके मैं क्या कर रहा था, मैं फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा था, इसको सिलेक्ट कर रहा था, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा था। क्यों? ये फोल्डर है। यहाँ पे आऊँगा, फिर से ओपन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब ओपन करता हूँ, देखो अब सिलेक्ट हो गया, राइट, क्योंकि वो फाइल थी, ठीक है। लेकिन अगर आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है तो आपको ब्राउज डायरेक्टरी से जाना पड़ेगा। सो डायरेक्टरी मीन्स अ फोल्डर, फाइल मतलब वो फोल्डर के अंदर की फाइल। फाइल डज नॉट मीन अ फोल्डर, ओके। फाइल और डायरेक्टरी अलग है। दोनों चीज़ें समझ में है आपको? फाइल फोल्डर JRE होम एंड JDK होम कैसे सेट करना है? Yes, yes, sir. ठीक है। अब ये सेट करने के बाद आपको एक और काम करना है, ये पाथ में आ जाओ और इसको एडिट करो। न्यू नहीं करना है, ये ऑलरेडी है। जो नई है उसके लिए न्यू बनाओगे, ठीक है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पे है ना। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। अगर कल जाके आपको इसका पाथ चेंज हुआ है और चेंज करना है तो आप एडिट कर लो। पाथ में आके यहाँ पे न्यू नहीं करना, एडिट करना। ये ऑलरेडी वैल्यू सिस्टम ने डाल दी है, हमें बस ये 2 वैल्यू डालनी है जो मैंने डाल दी है, ठीक है। क्या क्या करना है, ये बिन नाम का फोल्डर है, दिख रहा है? JRE में बिन नाम का फोल्डर है। इसमें देखो ये कुछ फाइल्स है। अब आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता के रख देता हूँ, ये देखो एप्लीकेशन एक्सटेंशन बोलता है .dll। .dll का मतलब है कि .NET का प्रोग्राम, .NET का सॉफ्टवेयर है। जब भी आपको कुछ .dll दिखेगा ना तो वो .NET का सॉफ्टवेयर होता है। और .NET किसने ओन किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसीलिए इसके ऊपर आप जब भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिख के आता है, देखो कंपनी लिख के आता है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। .dll होता है .NET का। तो इसके अंदर कुछ आपको फाइल्स दिख रही है। ये फाइल नथिंग बट क्या है? JRE की लाइब्रेरीज है, जिसके साथ वो रन टाइम में कंपेयर करेगा। सिमिलरली अगर आप जावा में जाते हो, JDK में जाते हो, बिन में जाते हो, तो यहाँ पे भी आपको सारी सेम चीज़ें मिलेगी। दिख रहा है? जावा, जावा जावा AWS, राइट। तो आपको ये पाथ को कॉपी करना है, बिन वाले पाथ को आपको कहाँ पे सेट करना है? ये होम में। यहाँ पे आ जाओ, न्यू में आओ, कंट्रोल V कर दो, बात खत्म, दैट्स इट, ठीक है। इसको मैं एडिट करता हूँ। तो JDK का भी बिन सेट करो और JRE का भी बिन सेट करो। ये ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। सो गाइस हमें क्या करना है, मैं पहले पूछ लेता हूँ कि इनमें आप में से किसी को डाउट्स है क्या? अगर है तो मुझे अभी बता दो बिफोर आई मूव अहेड। Anybody has got any doubts? Don't worry, okay? You can ask at this moment or any time again as well. बट डाउट्स को अपने पास मत रखो, क्योंकि इंटरव्यू में छोटी सी चीज़ भी बहुत काम में आती है। और वहाँ पे ऐसा होता है कि हमें इंटरव्यू में क्या होता है, हमें हमारा इम्प्रेशन शो करना होता है। वो इम्प्रेशन ही मैटर करता है, क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर इंटरव्यू में जो आप कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिखाओगे, उसी कॉन्फिडेंस के बेसिस के ऊपर वो आपको सिलेक्ट करेगा। सो बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समटाइम्स इंटरव्यूअर को भी कुछ आता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए बोलो, डोंट हेजिटेट टू टॉक। और गलत बोलोगे तो सामने वाला आपको क्वेश्चन करेगा, आपको समझेगा कि ये गलत है और आप सही के लिए जाओगे। सो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यू फर्स्ट नीड टू टॉक। ऐसा मत सोचो कि नोबडी एल्स इज टॉकिंग सो व्हाई शुड आई टॉक, ऐसा नहीं होता है। अपने वेज को खुद मतलब फॉर्म करो। सो यहाँ तक कोई डाउट्स है आप लोगों को? No, sir. तो इसको बिन वाला फोल्डर क्यों रहता है किसी सॉफ्टवेयर में? देखो फोल्डर क्यों होते हैं कि प्रॉपर फाइल का ग्रुपिंग होना चाहिए, राइट। जैसे कि फोल्डर के किसी भी चीज़ को जनरलाइज मत करो, सिंप्लीफाई करो। इसका मतलब क्या, मैं बताता हूँ। जब आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी, जैसे कि मूवीज़ है, सॉन्ग्स है, आपके कुछ पिक्चर्स है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आप फोल्डर बनाते हो कि नहीं बनाते हो? सॉफ्टवेयर के लिए अलग फोल्डर हो। आप क्यों बनाते हो फोल्डर्स को? स्पेसिफाई करने के लिए या फिर सेग्रीगेट करने के लिए?
हाँ, मतलब उसका मेंटेनेंस ईजी हो जाता है राइट। Yeah. इसको कहा जाता है इन ऑल टुगेदर उसके लिए नाम है मेंटेनेंस, मेंटेनेबिलिटी। मतलब कल जाके आप किसी दूसरे को बताओ कि भाई एक काम कर, मेरे सिस्टम में यहाँ से लेकर ये ड्राइव में जा, ये फोल्डर मिलेगा, यहाँ से डेटा कॉपी कर ले, या फिर यहाँ पे जो भी करना है वो कर, करेक्ट। मतलब किसी को बताने के लिए आसान होता है। आपका डेटा सेपरेटेड रहता है ना, मूवीज़ अलग रहती है, सॉन्ग्स अलग रहते हैं, पिक्चर्स अलग रहते हैं, राइट। मतलब सॉर्टेड होती है चीज़ें, करेक्ट। Yeah. तो वो जावा के अंदर वो फोल्डर उसने वैसे उसके लिए रखा है कि वो सारे काम के एग्जीक्यूटेबल्स है, मेन फाइल्स है उसकी, है ना। इसीलिए उसने उसको सेपरेट करके वहाँ पे रखा है। चाहता तो वो एक ही जगह पे रख सकता था, लेकिन वो सेपरेट क्यों किया है? क्योंकि उसका पर्पस अलग है। वो सारी एक ही काम की फाइल्स है, वो एग्जीक्यूटेबल्स है, और उसको पता है कि उसको पाथ सेट करने में आसानी जाएगी। अगर मैंने सिंपल सी चीज़ सोचो, यहाँ पे आता, ये लेवल पे मैंने ये सारी फाइल्स को रख देता, तो क्या होता है? ये इंक्लूड, JRE, लीप, कॉपीराइट, लाइसेंस, रीडमी, रिलीज, ये जो भी फाइल्स आपको दिख रही ना, ये सारी फाइल्स भी वहाँ पे ऐड हो जाती, जिनका वहाँ पे ऐड होना अननेसेसरी है, जिनका कोई पर्पज़ नहीं है, करेक्ट। अब उस सेपरेशन से क्या हो गया है? नेसेसरी और अननेसेसरी फाइल सेपरेट हो गए। तो जो आपको काम की चीज़ें है वही ऐड करो ना, जो नहीं है वो क्यों ऐड करते हो? Yes. और वो ऐड करने से क्या होता है? अननेसेसरी फाइल अगर आप ऐड करोगे तो सिस्टम के ऊपर का लोड बढ़ेगा। अननेसेसरी चीज़ों का रिमेंबर करोगे तो मेमोरी ऑक्यूपाई होंगी ना, आपका सिस्टम का मेमोरी ऑक्यूपाई होगा। आपके सिस्टम का मेमोरी मतलब आपका हार्ड डिस्क नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी मेमोरी बोला जाएगा, यहाँ पे आपको समझना है कि वो रैम को कंसिडर करके बोल रहा है, ठीक है। फिजिकल मेमोरी ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट द रैम। मेरे सिस्टम का 8 GB है, 16 GB होना चाहिए वैसे, 8 तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलो गाइस, तो लास्ट रिक्वायरमेंट जो है हमारा वो है इक्लिप्स को डाउनलोड करना। इसे कहा जाता है IDE। नाम से डरना मत, सिंपल चीज़ है। इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, E स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट। मतलब नथिंग बट क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। किस चीज़ के लिए? जावा को कोड कंपाइल और रन करने के लिए। ये वर्ड से डरो मत, मैं बताऊंगा कोड और कंपाइल का क्या 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 मतलब होता है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप जावा लिखोगे, जहाँ पे आप जावा रन करोगे, ठीक है। और इसको होने के लिए आपके सिस्टम में JDK और JRE का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पाथ का भी सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये JDK सिस्टम से पूछेगा। ये आपको तो आगे नहीं पूछेगा कि JDK JRE कहाँ पे, आपसे बात भी नहीं कर सकता, इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये सिस्टम से इंटरेक्ट करता है कि JDK और JRE कहाँ पे है, और वो बताने के लिए सिस्टम पाथ सेट करता है। उसको बताता है कि एक काम कर, ये पाथ चेक कर, जावा होम है क्या, इसका मतलब ये लोकेशन पे जावा मिलेगा। JRE होम है क्या, इसका मतलब ये लोकेशन में JRE मिलेगा, ठीक है। इसके लिए वो बोलता है। और पाथ में बिन है, इसका मतलब वहाँ पे उसके एग्जीक्यूटेबल्स है। तो ये इनका कम्युनिकेशन मीडियम है, आपस में बात करने का, आपस में इंटरेक्ट करने का। एनवायरमेंट वेरिएबल्स। सो गाइज, आप क्या करोगे? सिंपल यहाँ पे आ जाओ, इक्लिप्स टाइप करो, इक्लिप्स IDE। फॉर विंडोज़ भी टाइप किया तो चलेगा। देखो ये आ गया eclipse.org, है ना। तो ऑफिशियल वेबसाइट से हमेशा सॉफ्टवेयर लो, ये सारे फ्रीवेयर से, ये इसमें कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लगता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। ये देखो X64 32 बिट है, तो 32 बिट का डाउनलोड करो। और ये डाउनलोड को स्टार्ट कर दो। ये 113 MB का कुछ सॉफ्टवेयर है, होने दो, हो जाएगा, नो वरीज। मैं बताता हूँ क्या करना है। तो चलो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी आपको। सो प्रतीक, क्या आप बता पाओगे कि आज के सेशन में नाउ 7:54 कि हमने कहा क्या क्या चीज़ें कवर की? मैं आपके रेफरेंस के लिए नोटपैड फिर भी स्टार्ट रखता हूँ, सो दैट आपको इजीली याद आए। Yeah, sure. So आज के so first thing we do, we check on our system if Java is installed or not. Correct. So to check that, we open our command prompt and type Java, and if it shows something, then it means that yes, the Java is in our system. If no, it will show that that software is not installed.
lines will be there in our command prompt. But the software is वो not बोलेगा कि installed. नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इट विल से नॉट रिकॉग्नाइज्ड. Yeah, not recognized. If नहीं है तो जो नोटपैड में लिंक्स है उसमें जाके yeah, see Maven is not recognized. That kind of thing will show. हाँ. So नोट्स में लिंक्स हैं, उस पर जाके जावा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है. करेक्ट. करेक्ट. उसके बाद हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं. जैसे अपना सर्च में जाने के बाद एनवायरनमेंट बस सर्च करना है. हाँ. उसके बाद जो टैब आएगा तो उससे हम प्रॉपर्टीज के एडवांस लेवल इसमें जाएंगे और वहां से हमें वेरिएबल सेट करना है. उसके लिए तो सर एक बार ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा. हाँ, नो वरीज, नो वरीज. नहीं है एकदम. सो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे आप आ जाते हो. बस आपको न्यू करना है, नथिंग एल्स. यहाँ पे उसका नाम दो, इसकी वैल्यू दे दो. ठीक है. जावा होम एंड जेआरई होम में हमें बस इसका डायरेक्टरी का लिंक डाल के हाँ. वेरिएबल सेट कर देना है. फिर आप जाओगे पाथ में, इसको करोगे एडिट और यहाँ पे न्यू करके बिन वाले लोकेशन दोनों के आपको कॉपी पेस्ट करके इसको ओके करना है. और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए एक बार CMD में जाके फिर से जावा टाइप करो तो आपको इस टाइम उसका आंसर मिल जाएगा. वो बोलेगा कि है, मतलब ये सारी चीज़ों को वो ऐसा कुछ रिप्लाई देगा. एजेंट पाथ, जावा एजेंट, नॉट रिकॉग्नाइज को छोड़कर कुछ रिस्पॉन्स देगा वो. और अभी तो लास्ट में तो बस आईडी डाउनलोड करनी है. करेक्ट. तो मैंने इस आईडी को डाउनलोड किया है. कंट्रोल जैसे डाउनलोड्स आ जाता है. मैं ये जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो क्या होता है. ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा. ऐसा इंस्टॉलर चालू होगा. ये भी .exe है. जैसे एक सॉफ्टवेयर को आप सिंपली इंस्टॉल करते हो वैसे ही करना है आपको. बस मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको क्या करना है. ऐसा विंडो आपके लिए ओपन होगा. आपको बस पहली वाली चीज़ करनी है, इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स. ठीक है, बाकी कुछ भी आपको करना नहीं है. जावा ये सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दो. बस आपको पहली वाली चीज़ को याद रखना है, इक्लिप्स IDE फॉर जावा डेवलपर्स. आप क्लिक करो, है ना, और यहाँ पे आप डायरेक्टली इंस्टॉल का बटन दबा दो. वो अपने आप हो जाएगा. फिनिश का हो जाने के बाद फिनिश का बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करो. वो इंस्टॉलेशन आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. इसके लिए मैं आपको पहले से एक हिंट दे दूं कि ये अराउंड 200 to 300 MB का सॉफ्टवेयर है. इसके लिए आपको हाई डेटा कनेक्शन लगेगा. सो प्रेफरेबली मॉर्निंग में अभी के सेशन होने के बाद इसको तुरंत इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आफ्टरनून में वैसे भी स्पीड रिड्यूस होगा. और अगर जैसे स्पीड रिड्यूस होता है तो होता है कि बीच में क्या होता है, इंटरप्शंस आ जाते हैं. आधा डाउनलोड होकर आधा छूट जाता है. फिर जो आधा छूटा है उसके लिए अब आप फिर से उसको रिज्यूम नहीं कर सकते हो. आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है ना. तो कभी कभी ये बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है. सो माय सजेशन इज़ इसको मॉर्निंग सेशन में या फिर लेट नाइट में इसको इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में रख दो. बस आज के लिए बस आपको इतना ही करना है. इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर. जस्ट अ मोमेंट, में कुछ लिंक्स आपके लिए कॉपी कर देता हूँ. और यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इक्लिप्स फॉर जावा. मैं इन नोट्स को आपको शेयर करूँगा इन सम टाइम. ओके, ऑलराइट. डेस्कटॉप. ठीक है, तो इसको आपको ये सिलेक्ट करके बाकी ये करना है. तो जैसे ही आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाता है ना, तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा डेस्कटॉप पे, या फिर आप यहाँ पे सर्च में आके इक्लिप्स टाइप कर लेना, ऐसा मिल जाएगा आपको भी, इक्लिप्स IDE. वर्क स्पेस के लिए बोलेगा डायरेक्ट करना, ओके ही करना, उसको कुछ नहीं करना. ठीक है, वो जो भी वर्क स्पेस लेता है, मतलब वर्क स्पेस का मतलब होता है कि वो अपनी फाइल्स कहाँ पे सेव करेगा, और जो भी आप उसमें काम करोगे ना वो कहाँ पे सेव करेगा. आप चाहो तो चेंज कर सकते हो ब्राउज से, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है जो है वो रहने दो, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, बहुत कम स्पेस लेता है. ठीक है, उसको ओके करना. सम टाइम लेगा वो लोड होने में. Eclipse, just a moment. Let me load it again.
वन मोमेंट गाइस, 1 मिनिट आणि करतो. बस झालं का सेशन? या बॅक. सो या starting Eclipse ID, okay? If it doesn't start at first time, okay, don't panic. It may take a time. ये सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए आपके सिस्टम में बहुत अच्छा रैम होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर इसका बूटिंग डिपेंड है. ओके, सो मेक श्योर करो कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन नहीं कर रहे हो, है ना. आपका टास्क बार मोस्टली एम्प्टी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत सारे सेशंस आपके इसमें ओपन है, उस केस में वो लोड नहीं ले पाएगा. सो गाइज, आपको एक ऐसा विंडो मिलेगा. ऐसा विंडो जब भी हमारे पास आता है, इट मीन्स वी आर रेडी टू स्टार्ट द जावा प्रोग्रामिंग. दैट्स इट. और यहाँ से हमारा जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा. ओके, आपको एक वेलकम विंडो मिलेगा जब आओगे तो. बस उस पर आपको क्या करना है, उस पर यहाँ पे ना कहीं पे राइट साइड में टॉप राइट में आपको क्रॉस का बटन मिलेगा. बस वो क्लिक कर देना, फिर आपको ऐसा सेशन मिलेगा. ठीक है, और बाकी चीज़ें हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे. सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी एग्जिट करने का फंडा सिंपल है. यहाँ पे रेड पे क्लिक करो और ये करो. इक्लिप्स के साथ जब भी आप मतलब वर्क करोगे तो डरो मत. ऐसा मत सोचो कि आप नए हो, कुछ करोगे तो कुछ हो जाएगा. मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें आप कर रहे हो ना, उसको विदाउट फियर करो. यहाँ पे कुछ भी गलत होता नहीं है, और होता भी है तो वो बहुत ईजीली सेट हो जाता है. दूसरा फंडा ये है कि जितनी चीज़ें गलत करोगे उतना ही ज़्यादा सीख पाओगे, उतनी ही डिटेल्स में चीज़ों को सीख पाओगे. ठीक है, मैं भी पहले सिविल इंजीनियरिंग से मैंने भी ये सारी चीज़ें की है. जॉब में जाने के बाद ये सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ. तो बहुत आसान है, उतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं. बस ये है कि हमें फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ को ट्राई करते हुए. आपको बेनिफिट ये है कि आप अपने लोकल मशीन्स पे चीज़ें कर रहे हो, तो गलत होके भी क्या क्या होगा, बाकी प्रोग्राम्स को अफेक्ट नहीं होगा. बस ऐसा होगा कि जो आपका प्रोग्राम चल रहा है वो नहीं चलेगा, तो हम उसको फिर से रिवाइज करके फिर से सेट कर देंगे, वो फिर से चलने लगेगा. ठीक है, सो डू नॉट वरी, डू नॉट पैनिक कि ये हो जाएगा वो हो जाए. विदाउट एनी फियर उसके हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते जाओ. और जहाँ पे भी आप स्टक होते हो, डाउट्स आते हैं, any issues, doubts, concerns, you can just get back to me, ask me them, okay, and we will definitely cover most of them or all of them in our sessions. So before I close this session, I would like to ask everybody the first question. आपको कोई doubts है क्या? Regarding this session, no, sir. No. But one doubt from my side. Yes, please. Sir, you said you are a civil engineer. I'm also. Yeah. तो वहाँ जाने के बाद इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं होते कि लाइक यू आर सिविल इंजीनियर, व्हाई आर यू चूजिंग दिस एंड आई मीन दिस आईटी डिपार्टमेंट. और अगर ये 5 साल पहले की बात होती तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन वैलिड था, लेकिन अभी नहीं है. क्योंकि क्या है, ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत सारे, देखो, आईटी कंपनीज कॉलेजेस में आती है. नाउ दे हायर इंजीनियर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, ईटीसी, मैकेनिकल एज वेल, राइट. सो आर दे डिफरेंशिएटिंग? क्या वो सोच रहे हैं कि ये मतलब हम इस स्ट्रीम से ऐसा कर रहे हैं, उस स्ट्रीम से वैसा कर रहे हैं? क्या आईटी में सिर्फ इंजीनियर्स ही जा रहे हैं? जो डिप्लोमेट्स है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, जिन्होंने बाहर से कोर्सेज किए, वो नहीं जा रहे? जा तो सभी रहे. उनको क्या चाहिए? स्किल सेट चाहिए. ओके, दे रिक्वायर योर स्किल सेट. कि आप कहाँ से ग्रेजुएट हो वो नहीं देखते. आपका ग्रेजुएशन का कहाँ पे मैटर करेगा कि आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट डिस्टिंक्शन में है या नहीं है. अगर वो कंपनी का क्राइटेरिया है तो वो चेक किया जाएगा, अदरवाइज वो भी चेक नहीं किया जाएगा. सो ऐसा क्वेश्चन वो नहीं करेंगे. अगर वो फिर भी करते हैं ऐसा, क्योंकि आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि हर जगह नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे? तो आप उसको स्मार्ट आंसर करो. स्मार्ट आंसर क्या होता है? उस मतलब सामने वाले की जब आप तारीफ करते हो ना, तो वो 2 क्वेश्चन भूल जाता है. ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करो. ठीक है, तो उसको बोलो कि देखो, मतलब वो आईटी को है, उसको डेफिनेटली अच्छा लगेगा कि आप आईटी को अप्रिशिएट कर दो. सो आप बोलो कि मतलब, या फिर जेन्युइन आंसर दो. जेन्युइन आंसर देने में भी कोई बुराई नहीं है ना. आप बोल सकते हो कि जेन्युइनली क्या होता है कि बाकी स्ट्रीम्स में उतने सारे जॉब्स नहीं है ना. जॉब्स है तो पैकेजेस नहीं है, पैकेजेस है तो ग्रोथ नहीं है ना. और सो मेनी इश्यूज है. या फिर अलग कुछ प्रिपरेशन करना होगा, अलग कुछ टाइम लगेगा, ऐसा कुछ है. या फिर बोल सकते हो कि आपका कोई कजिन है जो ऑलरेडी आईटी में है, उसको देख के आप में ये इच्छा है, फिर ये पैशन अभी आपके अंदर आ गया कि आप भी ये करना चाहते हो. वॉटेवर, जो कुछ भी है. मोस्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आ भी गया है तो आप इसको टैकल कर सकते हो आपके जेन्युइन आंसर के साथ, या फिर उसकी आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की तारीफ करके.
और आप ये भी बोल सकते हो कि करंटली आईटी ऐसा सेक्टर है जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स दे रहा है। और दूसरी ये चीज़ है कि आईटी ऑलवेज ग्रोइंग है, क्योंकि कंप्यूटर की और गैजेट्स की डिमांड्स कभी कम होने वाली है क्या? नहीं। No. तीसरा आप ये बोल सकते हो कि ये जो गैजेट्स है ना, ये जो जिस तरीके से काम करते हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए मतलब आप इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और आप इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हो, इस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहते हो। दैट्स इट, सिंपल एंड प्लेन, नथिंग मच। Yes, sir. Got it, ma'am. कोई भी चीज़ है अगर आपको ज़्यादा नहीं पता ना किसी भी चीज़, और एक ट्रिक आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे नर्वसनेस को कम करने के लिए जो आंसर हमें आता नहीं ना उसके बारे में भी ज़्यादा बोलते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है? जितना पता है उतना ही बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा अननेसेसरी या फिर ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जो गलत है, जो हम अपने नर्वसनेस को कम करने के लिए देते हैं, उससे क्या हो जाता है, सामने वाला कैच कर लेता है और आपके वीकनेस को कंसिडर मतलब पकड़ लेता है। तो जितना पता है उतना ही बोलो, स्पेसिफिक बोलो, ठीक है? समटाइम्स क्या होता है, इंटरव्यूअर, मैंने भी इतने सारे इंटरव्यूज ले, हम 2 या 3 मिनट के लिए शांत रहते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो साइलेंस है वो मतलब कभी कभी होता है ना, डरते हैं कि मतलब वो 2 मिनट में वो पैनिक कर लेता है कि मेरा आंसर गलत तो नहीं है या फिर मेरा इंटरव्यू ख़त्म तो नहीं हो रहा है। तो उसका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है ना? तो जब ऐसा नहीं है कि मतलब आपका मतलब इंटरव्यू चल रहा है और आप मतलब जब तक मैं बोल नहीं रहा हूँ तब तक आपको आंसर करना, ऐसा नहीं है। आपका आंसर ओवर हो चुका है, आप उसको वहीं पे ड्रॉप कर दो, ठीक है? और आप उसको बुलाओ, मतलब उसको कॉल करो, ओके? जैसे कि बोल सकते हो, उसका नाम जैसे कि मोहन है, यस मोहन, ओके? ऐसा कुछ करके उसको बोलो, या फिर उसको बोलो आर यू देयर, आर यू लिसनिंग टू मी, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करो, ठीक है? मतलब सेशंस को अपने तरफ से इंटरेक्टिव रखो, मेरा ये कहना है। Yes, sir. गोइंग फॉरवर्ड ये सारी चीज़ें बताएंगी, बहुत कॉमन चीज़ें होती है, उतनी ये नहीं होती है, बस एक फंडा होता है, उस तरीके से ये करना होता है। और समटाइम्स क्या होता है, हम 2 या 4 इंटरव्यूज देते हैं, निगेटिव जाते हैं, उस निगेटिव इम्पैक्ट को लो मत, है ना? उससे आप नर्वस नहीं होने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस नहीं शेक होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं है उनको नोट करो, उन क्वेश्चंस के आंसर लो और नेक्स्ट इंटरव्यू में उसके आंसर करो। यहाँ पे आईटी में जो भी हम लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसा नहीं करते कि मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और फिर इंटरव्यू क्रैक करते हैं। वो सिंपली आके बैठ जाते हैं, 10 इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, 11वें 12वें 13वें इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि 10 के क्वेश्चन रट लेते हैं ना वो लोग। आपको 10 कंपनीज में प्लेस नहीं होना है, एक ही कंपनी में प्लेस होना है, राइट? सो आप टेंशन मत लो कि 10 लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। यहाँ पे थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कंपनीज है और आपको किसी एक में ही काम करना है, तो अपना फंडा तो क्लियर है, राइट? जो अपने को बेस्ट ऑफर देगा और अपने को ऑफर देगा उसके साथ हमें जाना है ना? Yes, sir. और सभी कंपनीज में ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का काम होता है। तो ड्रीम कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाइक के मामले में भी आप जब जब स्विच करोगे तब तक हाइक मिलेगा, ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी आपको कि मतलब दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा हाइक दे रही है, ऐसा वो हार्डली वंस और ट्वाइस उनके लाइफ टाइम में या 10 साल में एक बार होता है ना? इन फॉल्स अजम्पशंस के लिए फॉल मत होना, वो बहुत दूर की चीज़ है। Don't worry, we will stay connected and you can anytime ask me. No problem with that. Mohan, Yes. hello. Yeah, Can you please stop the recording? Oh, all right. All right. Just a moment.